No wonder आप राजा हैं. I'd request Mr. Sandeep Bhargava to come up on stage. We would like to felicitate the lyricist and Raja for being here and doing this for us. Shafakat साहब नहीं आ पाए, लेकिन आप हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें. Sandeep ji, please आइए stage. And this song is again composed by our Tanishq. Yes, Bakshi, yes. Can you also please come on the stage, please? Sandeep ji, please stage पे आएं. Bhushan Kumar sir, Ajay Kapoor, and Umang Kumar sir for believing in this song and giving me this opportunity to work in such a big and prestigious film. Thank you so much. And I would like to thank you for giving us such a brilliant song. Thank you. I'm a great And fan of yours. I would like to thank the entire team for having me a part of this song. And I totally enjoyed singing this, such a soulful melody. With that pure name and that pure voice, I'm sure Tulsi, you were anyway going to be called and beckoned upon. But Amal, aap kamal. जो भी गाना आता है हिट होता है यार कैसे how can you not clap for this young composer whose music is everywhere, whether it's an entertainment park or a horror film. But I have to ask you, why would Sarabjit have been a special moment for you? Because it's, you know, it's a story of an Indian, and I'm sure for you to have composed something this grave must have meant a lot. See, first of all, it's really unbelievable for me to be part of this film because with such a song, because I've made this song, I composed it when I was 17. Okay, so this is around 7 years back.
And it was Bhushan sir who heard the tune. Just randomly one day I played it to him, and Umang Kumar sir came to office, and we all heard the song together. And it's the first song of my life that, usually a director always has something to, say, maybe this is not good or that is not good. But he gave me 100% as a director and said, I don't want to change anything in this song. So I think it's the director's vision, it's the music label T-Series, Bhushan sir's vision, and most importantly, I think the writer, Rashmi and Virag both Please. have done a wonderful job. Please stage pe आइए because Please, we I would want to like you felicitate to this come home. 17-year-old Amal song. Bashu sir, thank you very much. आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं, बिल्कुल हमें नहीं दिखे हैं और क्यों आज हैं आप प्लीज फेलिसिटेट करते हुए प्लीज आके हमें बताएं. प्लीज कम अप ऑन स्टेज सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस वेरी हम्बल जॉइंट. ક્યાં આવ્યો સર? हिकिड़ी ॻाल्हि चयो, हूअं त तव्हां किथे ॾिसण में नथा अचो, अॼु कीअं अची विया तव्हां? जो हेॾो स्पेशल थे जे खानदान के कोठी ने. मैं आया हूं अपने बच्चों के लिए, जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख की पहली फिल्म है. I also know you're a music lover. What is the music of Sarabjit mean to you? Your kids have done splendidly well with that. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स फैंटास्टिक. और इसमें उमंग जी का, अंदर बैठा है संदीप सिंह और दूसरे भूषण जी, इनका हाथ ज्यादा है. He's the man who's written the song, so I think it's a huge round of applause for Very him. good. And for Arijit and Tulsi, who both have rendered this song. And I'm happy that it's reached out. Thank you to everyone. And Randeep Huda, you're here. I love making music for you, man. Thank you so much. सॉरी, मैं अर्चना और सिद्धांत से माइक छीन के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये गाना जब जीत जी ने और भूषण जी ने मुझे और उमंग जी को सुनाया तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा इतना डिफिकल्ट गाना गाएगा कौन. और भूषण जी ने
रात में कुछ एसएमएस किया था आई थिंक उमंग को कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सोनू जी टू रिकॉर्ड द सॉन्ग, और सोनू जी अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है वो आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी होता है, कुछ खुशी की बात होती है सोनू जी शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ था ये हमको किसी को नहीं पता था। और मैं चाहूँगा सोनू जी आप बैठ जाइए ना, तो नहीं मैं नहीं चाहूँगा, नहीं इसके बाद मुझे जाना ही है। तो आप लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन ये बिल्कुल भी चल नहीं सकते हैं, और 2.5 महीने से सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल करके। लेकिन इस फिल्म के लिए जब उनको कहा गया तो उन्होंने तुरंत ये गाना गाया, और जब ये गाना गा रहे थे मुझे याद है बाहर जीतदा रो रहे थे, और हम लोग रिकॉर्डिंग के बीच में अंदर जा जाके सोनू जी को डिस्टर्ब कर रहे थे, हक कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस गाने के लिए। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, काश मतलब ये पूरे रॉड लगे हुए हैं इनके पैर में, चल बिल्कुल नहीं सकते हैं। और इस कॉन्सर्ट के लिए भी मतलब एंड मोमेंट तक हम तैयार थे कि शायद ये नहीं आ पाएंगे। संदीप सिंह को मैं लगभग 12 साल से जानता हूँ। जब संदीप एकदम छोटा सा बच्चा, ही वॉज इन द रेडियो सिटी स्टेशन, एंड तब भी इनके अंदर में बहुत आग और बहुत उन्माद, पैशन, आइडियाज रहते थे। यू हैव नो क्लू हाउ प्राउड यू मेक मी। दिस इज सच इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस टू सी संदीप सिंह प्रोड्यूसर बन गए हैं और उनकी फिल्म में मैं गाना गा रहा हूँ। बिग हैंड टू दिस हार्ड वर्किंग यंग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मस्तीखोर है, बदमाश भी है, बट इसको सब प्यार करते हैं। सो बिग हैंड फॉर संदीप सिंह, कीप गोइंग वेरी वेरी हाई एंड टेक अस हाई विद यू ऑल्सो। जीतदा, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर भूषण कुमार जी ऑन स्टेज। दलबीर जी, आपके लिए थैंक यू। आप घर पे आए और आपने मुझे एक्चुअली आपके परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बनाया। आपको पता नहीं है कि ये गाना मेरे लिए इतना स्पेशल, आपको पता है इसलिए क्योंकि 2005 में मैंने सरबजीत भाई के लिए गुहार लगाई थी अपने हिसाब से, और मुझे याद भी नहीं था कि आपको याद होगी ये बात, बट आई एम थैंकफुल कि आपको ये बात याद है। और मुझे सरबजीत जी के जीवन में बनी हुई इस फिल्म पर हिस्सा बनना था, ये मेरी डेस्टिनी थी। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड रणदीप, आपने बहुत ही बेहतरीन, जो मैंने ट्रेलर देखा, नो वन कुड हैव डन अ बेटर जॉब देन यू, वंडरफुल, वेरी गुड। उमंग, ऑल द वेरी बेस्ट, फिल्म दिखाओ जल्दी। Thank you very, very much, Sonu bhai, for coming here for this concert. बहुत टच्ड हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी इस हालत में आ पाएंगे, बट थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड थैंक यू दीपशिका, थैंक यू जैकी फॉर बीइंग अ वंडरफुल जॉइंट प्रोड्यूसर विद अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वाशु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अलॉन्ग ऑन दिस फिल्म, एंड उमंग कुमार एज डायरेक्टर, एंड संदीप सिंह ऑफ कोर्स, एंड द एंटायर टीम ऑफ सरबजीत। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली संदीप से वापस for a person who performs 20 days a month,
been patiently sitting at home. Yes, I mean, yet giving us blockbusters. Jeet sir, I love your song. हाड़ा जी आप आए 2 मिनट। और मैं इतना खुश हुआ भूषण जी कि जब गाना हुआ तो इनके घर में एक टेम्पो डिलीवर हुआ था जिसमें हर तरह का सामान था, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, शरबत, जल। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज इस तरह की जो एप्रिशिएशन है बहुत रेयरली ऐसी मोमेंट आती है कि जब मैं गा रहा था गाना तो यही मेहरबान, मैं घर पे आया वापस, मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा मेरा बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने को, तो जब तक आप ऐसा करें, उनको फ्रूट खाने दीजिए, ये कर, तो वो एप्रिशिएशन है। तो अभी आपने जो परफॉर्म किया है, इन्होंने भी मतलब मैंने इनके साथ गाया है एंड इट्स रियली वेरी वेल कंपोज्ड, वेरी वेल रिटन। और मुझे बड़ी खुशी है कि आगे फ्यूचर में भी आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर यू। You're really such a wonderful person, wonderful composer. जब सारी टीम बैठी थी, डायरेक्टर साहब भी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी, राइटर्स, सब ने कहा यार मिल्खा सिंह क्या कभी शराब पीता था? कहते नहीं, सबने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बैठा तो मैंने कहा फोन करके पूछ लो ना डायरेक्ट उनको। तो आगे से बड़ा चुपके से जवाब मिला कि 1-2 बार बस। कहते बस बहुत है इतना। कहते सुखी रेडी हो जा, अब ये गाना तेरे लिए बनेगा। तो इट्स रियली वेरी इमोशनल ट्रेजेडी जो सरबजीत, इट्स जस्ट नॉट अ फिल्म, ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात, एक ऐसी दुर्घटना जिसको लोगों के सामने बड़े इमोशनल तरीके से पेश किया जा रहा है। एंड आई रियली बिलीव उमंग कुमार, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। और इतना इमोशनल कंटेंट होने के बाद अगेन मैंने जो भाग मिल्खा भाग का जिक्र किया था कि उसमें मैंने आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसमें कोई बहुत ही चक दे इंडिया या टाइटल ट्रैक गाऊंगा, उसमें भी मेरे को स्लो मोशन अंग्रेजा तू पी ले, तू नाच ले, तू गा ले। और सरबजीत जैसी इमोशनल कंटेंट में भी मेरे हिस्से में फिर ताता थैया थैया ही आया। एंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज ऑफ इन द नेम ऑफ सरबजीत। हम उनके गम में भी शरीक हैं, उनकी उन खुशियों को भी याद करना चाहते हैं जो पल उन्होंने अपनी जिंदगी में जी। And I would say it's a peppy number which actually completes the album. बहुत अभी देखिएगा। And Sunidhi, you will love it. Sunidhi, before I leave, I met you for the first time and I have this secret crush on you. मेरे पास 2.5 किलो का हाथ नहीं है पर 2.5 किलो का हार्ट है जो आपको देख के 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ता है। सो थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much.
मेरे ख्याल से आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं और बहुत कुछ आपकी इमोशनल जर्नी होती है, पर वो म्यूजिक के बगैर अधूरी होती है। म्यूजिक उसमें चार चांद लगा सकता है, जैसे कि आपने देखा इस फिल्म में जिसने भी गाया है, जिसने भी म्यूजिक दिया, उन्होंने चार चांद लगा दिए। माय अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। प्लीज लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। दिलप्रीत जी, थैंक यू आने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरा दिल कभी बोलने से पहले इतना जिंदगी में नहीं धड़का जितनी घबराहट और धड़कन आज मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म में कौन सा गाना मेरे लिए फेवरेट होगा। जिसे भी सुन रही थी, जो भी सुन रही थी, मुझे यूं ही लग रहा था कि जो भी गा रहे थे ये गाना इन्हीं के गाने के लिए लिखा गया था। हर गाने के अंदर सुनकर मुझे लग रहा था कि उस कलम को मैं चूम लूं, उसे दिल से लगा लूं। जिसने दिल की गहराइयों से प्यार की सलामती के लिए लिखा, प्यार के उस दर्द के लिए लिखा, उस जीने की खुशी के लिए लिखा, सब कुछ था। मैं अनुभव कर रही थी उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस पल की जुदाई को जब हम जुदा हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि जब हम जुदा हुए थे कि इस तरह की जुदाई आ जाएगी कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे उस गाने के अनुसार कि वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मैं अभी कह रही थी तुलसी से कि एक शो में मैं इनको सुन रही थी, पापा का गाना। उस गाने को सुनकर मैं अपने घर में रो रही थी और एहसास कर रही थी कि बाप और बेटी का प्यार, उस प्यार का दर्द, उस प्यार का अनुभव, उस प्यार की वो मिठास जिससे बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण वांछित रह जाते हैं। इसी तरह सरजीत के साथ हुआ, उसके बच्चों के साथ हुआ। उसकी बेटियां तड़पती रही, इंतजार करती रही कि हमारे पापा आएंगे। पापा कहने के लिए
सामने पापा हो और उनको बुलाया जाए पापा कहकर, बड़ा एक दिल के अंदर उत्सुकता होती है, एक प्यार होता है, मिठास होती है। उस पल को जब अनुभव करें, उस शब्द का जब अनुभव करें, सच में दिल की गहराइयों से निकला हुआ वो पापा बाप को जहां प्यार का अनुभव देता है, वहां बच्चों को भी आनंदित कर देता है, पुलकित हो उठता है वो दिल जिससे निकलता है पापा। परमात्मा न करे कभी किसी बच्चे से, कभी किसी सुहागन से उसका सिंदूर, उसका सुहाग, बच्चे का बाप बहन की राखी की वो कलाई कभी ना छीनी जाए। बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन बातों में जाऊं, क्योंकि सरबजीत नाम एक ऐसा नाम है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दुआएं दी, दोनों हाथ उठाकर। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे जो प्रेम में, प्रार्थना में, दुआओं में शामिल होते थे। आप सबने बहुत दुआएं दी। हर दिल से, हर घर से आवाज निकलती थी, सरबजीत तुम सलामत वापस लौटो। हर हिंदुस्तानी का इंतजार था, हर हिंदुस्तानी की चाहत की प्यार था। उस इंतजार को हम सब महसूस करते थे। एक दिन मैंने सोचा था, बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि जिस दिन सरबजीत आया, लगता है कि हिंदुस्तान में एक ही दिन होगा जिस दिन दिवाली भी होगी, होली भी होगी, हमारी लोहड़ी के ढोल ढमक्के भी होंगे, मेरे लिए बैसाखी भी होगी, मेरी वो राखी भी होगी। सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना थी। मैंने कभी, सच है कि ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं जब भी मांगती थी यही कहती थी, ईश्वर इतनी सुबह मुझे जरूर दे देना कि बॉर्डर के उस पार से आता हुआ मैं अपना बेटा देखूं, उसका माथा चूमूं, से सीने से लगा लूं, फिर बेशक धर्म से मैं वहीं गिर जाऊं, मुझे कोई चिंता ना होगी, लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मेरा भाई, मेरा बेटा अपने घर आ गया है, मेरे बाबुल के आंगन में वो खुशियां, वो बहारें फिर से लौट आई हैं। बस इतना ही चाहती थी मैं। शायद ईश्वर को गवारा नहीं हुआ। चलिए, मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि सरबजीत के फिल्म को आप प्यार जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। सरबजीत आपके दिलों को छुएगी फिल्म। इसके गाने का हर बोल, हर वो शब्द आपके दिल को छुएगा। सरबजीत को आपने पहले ही बहुत प्यार किया, बहुत चाहा है वो आपका अभिनय। आज उसे इस रूप में भी फिर से प्यार दे देना, सच में उसे सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप फिल्म देखकर एक बार कहेंगे कि सच में उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा एक निर्दोष के साथ नहीं होना चाहिए था। मैं कई बार सोचती थी, सरबजीत से मुलाकात से पहले मेरे दिल में एक बार चाहत आई थी कि ये बॉर्डर, ये लकीरें, ये हमारे बंटवारे जिन्होंने मेरे कदमों को रोक के रखा है, मैं पास में होकर भी उसके पास नहीं जा पा रही, तो मैं दिल में सोचती थी काश मेरा बस चले, मेरा रब मुझे, जब को रब्बा आ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने भी एक दिन रब को याद किया था और कहा था, रब्बा मुझे दलबीर को न बनाकर एक इंसान न बनाकर मुझे एक परिंदा बनाया होता, जिसके लिए ये सीमाओं की हदें ना होती, ये बॉर्डर ना होता, इनको लांग पाना मेरे लिए मुश्किल ना होता। मैं उठकर जाती और उसे मिलाती, जब जी चाहता मैं जाती उसके साथ पल, कुछ पल में शायद कोठरी के अंदर भी बैठकर बिता लेती, और किसी की हिम्मत भी ना होती कि हिंदुस्तान से आई ये चिड़िया शायद सरबजीत के लिए जासूसी ना करने आई हो। कहीं मैं उतार चढ़ाव में आई हूं, गानों को सुन रही थी मैं, वो अपना जीवन, वो अपना प्यार, वो अपना रिश्ता अनुभव कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी सरबजीत फिल्म को देखेंगे, इन गानों को सुनेंगे, तो आपके दिलों को इतनी गहराइयों तक छू जाएंगे
कि जैसा अभी मैंने चाहा कि मैं वो कलम चूम लूं, जिसने सलामती भी मांगी, जिसने खुशी भी मांगी, जिसने वो दर्द का एहसास भी कराया, जिसने भगवान से वो मेहरबानियां भी मांगी कि वो मेहरबान हो जाए कि हमारे बीच की वो दीवारें, वो नफरत की आग मिट जाए, बुझ जाए, ताकि मजहब के नाम से, किसी देश के नाम से, किसी बस्ती में दंगा फसाद ना हो, कि किसी बस्ती से किसी रहीम का जनाजा उठे, किसी धर्म के नाम पर वो लड़ाई झगड़ा ना हो, कि किसी गली में से किसी राम की अर्थी उठे। मैं तो यही आप सबसे एक बार फिर अपील करना चाहती हूँ कि दुआ भी मांगना इस फिल्म को देखकर कि रब्बा सच में मेहरबान हो जा, कि हमारी ये नफरतों की दीवार मिटे, गिर जाए, चकनाचूर हो जाए, हम फिर से एक हो जाए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए तड़पें, एक दूसरे के साथ रिश्ते प्यार निभाने के लिए तड़पें, कि हमारा फिर से दोबारा कोई सरजीत इस कदर ना आए, कोई सरजीत वहां ना फंसे, कोई सरजीत यहाँ ना फंसे। इतना ही कहती हुई मैं आपसे फिर अपील करती हूँ कि आपके दिलों को छुएगी, आपके करीब है दिलों के सरजीत, इसी तरह से ये भी इसे भी करीब बना लेना और इसे प्यार देना, आशीर्वाद देना। रणदीप, संदीप या उमंग, दर्शन हो, ऐश्वर्या हो, ऋचा हो, भूषण हो, तुलसी हो, मैं किस किस के नाम लूं, या मेरा छोटा भाई जैकी हो, सबने बहुत ही अपने प्यार और लगन से और बड़े मस्त होकर इस फिल्म को बनाया, दर्द का एहसास किया। और जिन्होंने गाया है, मैं तो हमेशा इनके लिए यही कहूंगी कि हर पल हर घड़ी फतह आपके कदम चूमे, आप इसी तरह से बढ़ते जाएं। सरस्वती माता आपके ऊपर इतनी अपार कृपा करे कि आप जहां दर्द का एहसास कर रहे हैं, वहां प्यार का, मिलन का एहसास भी कराएं, खुशियां भी बांटें, आपको फिर कभी दोबारा किसी इस तरह सरजीत के लिए गमगीन गाने ना गाकर खुशियों का माहौल आप बनाते रहें, खुशियां बांटते रहें। और उमंग के लिए भी मैं यही दुआ करूंगी कि उमंग और संदीप आगे जब भी कोई फिल्म बनाए तो ये खुशियों की फिल्म बनाए। मैं भी खुश होंगी, हमारा हिंदुस्तान भी खुश होगा, देखने वाले भी खुश होंगे, खुशियां बांटना इनके हिस्से में भी आ जाए। परमात्मा ये खुश रहे, तरक्की करे, दिन चुगने और रात चुगने। और रणदीप ने सच में इस रोल के अंदर मेरे दिल को छुआ, सच में मेरे दिल को छुआ। रणदीप जहाँ एक हरियाणा का बच्चा, हरियाणा और पंजाब वैसे भी भाई भाई हैं, लेकिन सच में रणदीप मुझे सरजीत नजर आता है, मुझे भाई नजर आता है। और मैं दुआ करूंगी कि रणदीप कभी भी तुम्हें नजर न लगे, तुम इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। और जो भी कोई देखे तो सोचे कि इस फिल्म में भी यार रणदीप ही होना चाहिए था, इस फिल्म में भी रणदीप ही होना चाहिए था, इस रोल में भी रणदीप ही होना चाहिए था। हमारे दिल की जो चाहत थी कि रणदीप आए, रणदीप ने आकर हमारे परिवार को खुशियां भी दी हैं, हमने हमारे उस दर्द को भी सहा। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि रणदीप हजारों साल जियो, तुम्हें कभी नजर न लगे, कभी नजर न लगे। Huge round of applause. This is a great moment for